أعوذ بال- أعوذ بالله السلام من علیکم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے کیسی ہیں ہیں آپ؟ آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. احسان ہے. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی شروع کریں. الحمد ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ہمارا پارا 2 چل رہا ہے نا. آپ نے ٹیسٹ کیے تھے دونوں؟ کوئی مشکل تو نہیں جی ہوئی؟ 2 ہی بھیجے تھے میں نے. نہیں نہیں، وہ کر لیا ہم نے جی. وہ ایزی ہوں گے، اور جو نہیں آتا اگر اس کا جواب آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ویل اینڈ گڈ. اور اگر جی کوئی جی. کنفیوژن ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ ہمیں سمجھ آ گیا. ایک دو ہماری غلطیاں تھیں، وہ ہمیں سمجھ آ گئی. وہ سمجھ آ جاتی ہیں کیونکہ اس کا فائدہ ہوں. یہی ہے نا کہ آپ کی اگر کوئی غلطی ہے تو آپ کو صحیح ہو جائے. اچھا، پارا 2 میں ابھی مجھے تھوڑا سا نا یہ سیریز جو ہے نا، لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو ذرا کنٹینیو کریں جو آپ کر رہی تھی. اچھا. ہاں، تو وہ پارا 2 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک لیسن کر لیا نا پارا 2 کا. ہوں. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں سے میں آپ کراؤں. یہ تھوڑی امپورٹنٹ آیا تھا تو اس میں تھوڑی بات رہ گئی تھی، تو میں نے کہا تھا میں نیکسٹ ویک میں کرواؤں گی. جی. تو یہ والی نا میں کروا رہی ہوں دوبارہ. بکذالی کا جال ناخن. ہوں. تو صحیح. اس کو آپ کریں. اوپر والا آپ پڑھ لیجئے گا. آپ کے پاس بک بھی ہے نا؟ بک آپ کے پاس یہ والی کہ میں بھیجوں؟ یہ ہمارے پاس ہے. ہاں، تو آپ نے ڈاؤن لوڈ ہی کرنا ہوتا ہے نا. کیا کرنا ہوتا جی. ہے، لنک آپ کو دیا اس میں سے آپ پارا 2 کا پارٹ 1. ابھی یہاں سے میں ہوں. پڑھا دوں گی تو پھر ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. تو اب کیا ہے، پڑھیے وکذالک کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے کون پڑھ رہا ہے؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں. وَكَذَلِكَ and thus likewise جَعَلْنَاكُمْ we made you all ummatan and ummah/community wasatan middle way justly balanced لِتَكُونُوا so that you all become shuhada'a witnesses Allah upon النَّاسِ the people وَيَكُونَ and he is وَيَكُونَ. اچھا، اب یہاں سے پڑھی کذالک لائک وٹ. اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اور اسی طرح. لائک وٹ ہے نا، اسی طرح. جی. آگے پڑھیں. Um, just as we have guided you to the straight path, guided you to the right direction in prayer, He has also made you an ummah that is wasat. جی، وکذالک اسی طرح. جعلناکم ہم نے بنایا تم کو. وی میڈ اور یو آل امتن این امہ کمیونٹی. اور وسطن کا مطلب ہوتا ہے مڈل. ٹھیک ہے نا؟ بیلنسڈ. جی. لِتَكُونُوا کیوں بنایا؟ تاکہ تم کیا کرو، ہو جاؤ. سو دیٹ یو آل بیکم شہداء وٹنسز. مسلم امہ جو ہے وہ وٹنس ہے. جی. کس بات کی وٹنس ہے؟ ابھی آئیے پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے؟ جی. الناسی وہ بھی بتا دیا کہ کس چیز پہ وٹنس ہے. لوگوں پر. لوگوں پر، عوام پر. جتنے بھی ہوں. قیامت کے دن انسان کھڑے ہوں گے، مسلم امہ ان سب کے اوپر وٹنس ہوگی. وہ یقون الرسول. اور رسول جو ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی آگے پڑھیں گے ہم. رسول بھی جو ہوں گے، دا میسنجر علیکم اپون یو آل شہیدہ. ہوں. ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ تو مسلم امہ پہ بھی ہوں گے اور پوری دنیا ہوں. پہ بھی ہوں گے، ہے نا؟ ساری امتوں پہ بھی ہوں گے. جی. لیکن مسلم امہ کس پر ہوگی؟ وہ ساری امتوں پر ہوگی. ہوں. وہ اپنی امت پر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی آپ کو ہوں. ایکسپلین کریں گے. تو یہاں پر ہوں. ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو پھر آگے پڑھیں گے. تو یہ پڑھ لیا آپ نے وسطن. کہاں تک پڑھا؟ جی. اسی طرح ہو گیا. یہ یہاں تک پڑھ لیا. وسطن کو پڑھیے. یہاں سے wasat پڑھیں. ہاں، جعلنا کو وہ یا میڈ یو. we have made you refer to the Muslim ummah, ummatan, a group of living یہاں beings that is کم connected کم by. سے کیا مطلب ہے؟ کم سے یہ مطلب ہے مسلم امہ. جی. یو آل تو اس سے ہوں. مسلم امہ مراد ہے. یعنی جی. کذالک اسی طرح. جعلنا کو بنایا ہم نے تم کو. امتن a group of living. beings that is connected by a common element. امہ Um, کیا ہوتی ہے؟ ایک گروپ آف پیپل اور لیونگ بینگز ہوتی ہے، یعنی انسانوں کا ایک گروپ ہوتا ہے
اور وہ جی. کیا ہوتا ہے، ایک کامن ایلیمنٹ کے اندر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی جو ہوتے ہیں نا نبی کی امت ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ وسطن کیا ہے؟ While seen tall, wasat is used for the middle part of something, that which ہم، is the center or core. One, used for that which is central, right in the middle, either in quantity or distance. Two, that which is the best because that which is the best is in the middle. Example, which age is the best? Which part of the day is the best? ہم، Um, ٹھیک what ہے۔ does ummatun ہم، wasata mean? Different interpretations. One, an ummah that is right in the middle in its time of existence from the beginning of creation to the end of time. Two, the commands and laws of this ummah. Islam are very moderate. The previous. وسط کا مطلب بہت سارے میننگ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ پہلا میننگ کیا ہے؟ یوزڈ فار دیٹ وچ از سینٹرل، مڈل۔ مڈل کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے اور ہم بھی ہیں اور ہم سے پہلے بھی آ چکے ہیں، تو ہم کون سی امت ہے؟ ہم وسط امت ہے، درمیانی ہے، رائٹ جی. ان دا مڈل ہے۔ ہمارے بعد بھی تو لوگ مسلمان ہوں گے نا، جی. ادھر ان کوانٹٹی اور ڈسٹینس۔ نمبر دو کیا ہے؟ نمبر ٹو، دیٹ وچ از دا بیسٹ، بیکاز یہ بھائی جو امت وسط ہے یہ بیسٹ امت ہے، اور دیٹ وچ از دا بیسٹ از ان دا مڈل۔ مڈل چیز جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ درمیانہ رہ کر. ہاں، ہر چیز میں نہ بولنا اچھا ہے زیادہ، نہ کھانا اچھا ہے، نہ سونا اچھا ہے، نہ ہنسنا اچھا ہے، نہ ایون کوئی کام بھی اچھا نہیں ہے زیادہ۔ تو جو آپ اچھی سے اچھی کھا لے، آپ ہنی بھی لے رہے ہیں نا، ہنی بھی تو وہ بھی آپ نے مڈل وے میں لینا ہے۔ اگر آپ ضرور سے زیادہ لیں گے تو وہی چیز آپ کو جو صحت دینے والی ہے وہ خراب کر دے گی، بیمار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بیماری رکھی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھی ہے۔ بیماری کب ہوتی ہے؟ ہر چیز فائدے کی ہے انسان کی، زائد اللہ نے یوز پیدا کی کرو. ہے جب وہ اس کو آپ کوانٹٹی سے زیادہ یوز کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ یوز کرو. تو آپ نے ہنی کو بھی وسط میں رہ کے کرنا ہے، تو جی. مڈل وے از دا بیسٹ وے۔ جی. اور جو ہم یہ جو امت ہے یہ بیسٹ امت ہے کیونکہ یہ مڈل میں ہے۔ مڈل کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مڈل کا ایک میننگ تو مڈل ہی ہے نا، سینٹر میں، سینٹرل ہے یہ، رائٹ ان دا مڈل ہے۔ دوسرا میننگ کیا ہے کہ یہ مڈل میں رہ کے کام کرتی ہے، اس کا ہر کام میں اعتدال ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سیدھا رستہ ہے، نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے۔ آج ہم لوگ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، جو جی. دین پہ ہیں وہ اس سے ایکسٹریم پہ چلیں گے، جو دین پہ نہیں ہے وہ اس سے ایکسٹریم پہ چلے گئے، نام کے مسلمان رہ گئے۔ جی. وچ پارٹ آف دا ڈے از دا بیسٹ؟ مڈل۔ سوال آ گیا نا، مڈل پارٹ از دا جی. بیسٹ پارٹ، رائٹ؟ رات کا مڈل پارٹ، اللہ نے کہا رات کو اٹھو، مڈل میں اٹھو، میری عبادت کرو، بیسٹ پارٹ۔ تو جی. مڈل از دا بیسٹ پارٹ۔ دین میں کہا گیا مڈل میں رہو، کنارے پہ نہیں جانا، مڈل میں رہ کے اللہ کی عبادت کرو۔ سرکل ہے، آپ مڈل میں رہیں، اگر آپ کنارے پہ ہوں گے آپ دوسری طرف گر سکتے ہیں، برائی میں پڑ سکتے ہیں۔ آج کیوں مسلمان برائی میں پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو مڈل میں ہے ہی نہیں، ہاں. وہ کنارے پہ ہیں، تو وہ وہاں پہ ان کو جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ جی. ایک جانور جو کنارے 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 پہ چل رہا ہے وہ چلا جائے گا دوسرے کے کھیت میں، اللہ کی اس کے حدوں کو کراس چانسز کر زیادہ لے گا۔ ہوتے تھے کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں گے. بالکل، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مڈل میں رہنا ہے، مڈل وے پارٹ از دا بیسٹ۔ واٹ ڈز، یہ کیا لکھا ہے؟ امتن وسط مینس، Um, پڑھیں۔ different interpretations. One, an ummah that is right in the middle in its time of existence from the ہم، beginning of creation to the end of time. Two, the ہم، commands and laws of this ummah. Islam are very moderate. The previous ummahs had strict laws. The laws of Islam are free of extremism. ہم، Uh, Three, this ummah is the best ummah if you compare it with the other ummahs. The Yahud killed their prophets. The Nasara began worshipping the prophet sent to them. Four, after the Prophet ﷺ's mission, the deen was completed and it was passed down to his ummah. The ummah of the Prophet ﷺ is in the middle link, the connection. It is our job to convey the deen. آپ Just as the کہیں پہ بھی Kaaba. سٹاپ نہیں کرتی ہو، جہاں پہ سٹاپ کرنا ہے نیو نمبر آ رہا ہے وہاں سے آپ نے سٹاپ کر کے پڑھے نا،
हम्म। बहुत से लोग आपको सुनते हैं, जिस बंदे ने मुझे कहा है ना ये सब, वो कहते हैं हम भी, बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं आपको सुन रहे होते हैं। जी। हम भी, एक बंदा नहीं सुन रहा, मैं सिर्फ लिख रही हूँ उनकी तरफ से कि सीरीज हम्म। क्यों बंद कर दिया आपने। तो उन, जिस तरह आप चार लोग हैं, उनके भी चार पांच लोग पीछे बैठ के सुन रहे होते हैं ना। जी। यहाँ तो नहीं सुन रहे, लेकिन रिकॉर्डिंग तो सुनते हैं, उनको टाइम नहीं मैच करता आपका। जी। ठीक है, तो वो फिर बेचारे रिकॉर्डिंग सबको सुनते फायदा हैं। होता है तो तो। आप इस तरह पढ़ेंगी तो ना आपकी अम्मी को समझ आएगा, ना मेरा समझ आएगा, ना किसी और को समझ में आएगा। तो मैंने ये बात कितनी हम्म। बार कहा है, बहुत बार बार, अब तो मुझे शर्म आती है बोलते हुए। जी, स्लो पढ़ना चाहिए बस। आपकी मॉम को समझ आ रही है? जी जी जी, मैं सुन रही हूँ। नहीं वैसे बात की नहीं, मैं समझ, मैं इनके पढ़ने की बात कर रही हूँ। कहाँ जी, से मैं नया खुद के पॉइंट साथ शुरू साथ हो रहा पढ़ती है? रहती हूँ, ये भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं स्क्रीन से खुद भी पढ़ती रहती हूँ ताकि मुझे समझ आती रहे। हम्म। तो बेटर नहीं आप लिसनिंग करें जी। पढ़ने की बजाय? जी। आप डबल कर रही हैं ना, लिसन भी कर रही हैं और वो भी कर रही हैं, तो सही नहीं है। हम्म। अच्छा, तो वो तो मेरे सामने स्क्रीन है ना। तो आप क्या करें कि जहां पे नया पॉइंट शुरू होता है वहां पे एटलीस्ट लंबा और नया से पता लगे कि यहाँ से न्यू पॉइंट आ रहा है। हम्म। सही है ना? जी। चले, अब फर्स्ट पार्ट दोबारा से मुझे पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आप रुकी नहीं कहीं। An हम्म। उम्मा that is right in the middle in its time of existence, जो भी उसका टाइम एग्जिस्ट कर रही हो, एग्जिस्टेंस का जी। from the beginning of the creation to the end हम्म। of the time, यानी उसका जो टाइम है। हम्म। अच्छा, यानी एंड ऑफ द टाइम, यानी एंड ऑफ द टाइम क्यामत के दिन तक, तो उसके क्या बीच में बताऊँ। ये मिडल। द हम्म। कमांड्स एंड लॉ ऑफ दिस उम्मा इस्लाम आर वेरी मॉडरेट। द प्रीवियस हम्म। उम्मास हैड उम्मा हैड स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट लॉज। लॉ। उनके हम्म। स्ट्रिक्ट लॉज थे। द लॉज ऑफ इस्लाम आर फ्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म। दिस हम्म। उम्मा इज द बेस्ट उम्मा इफ यू कंपेयर इट विद द अदर उम्मास। आपने हम्म। समझाना है ना दूसरों को। अब हम्म। यहूद के किल्ड देयर प्रॉफिट्स, क्या करते थे वो? हम्म। The Nasara begins to worshipping the prophet sent to them. Number four, हम्म। after the Prophet sallallahu alaihi wasallam's mission, the deen was completed and it was passed down to his ummah. The ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is in the middle link. ठीक है ना? हम्म। The connection. It is हम्म। our job to convey the deen. अभी दीन हमने पहुंचाना है, क्योंकि आगे कोई नबी नहीं आना। अभी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने दीन को जिंदा रखते हैं या इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। हम्म। अल्लाह ने कहा तुम कुछ भी कर लो, मैं 100 लोगों की एक जमात हमेशा रखूंगा हम्म। जो मेरे दीन को, मेरे कलमे को बुलंद करेगी। हम्म। तुम सब जो मर्जी है करो, वो तुम्हारे अपने हैं। जस्ट एज हाँ, द आप तो काबा अपना इज अ अपना है, मीन। लेकिन इस्लाम तो रहेगा। अब ये अपने इस्लाम ऊपर तो है कि हम रहेगा, अपनी आखिरत बनाते हैं नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो, हमारी जॉब क्या है कि हम कन्वे करें दीन को। जस्ट एज द काबा इज, यहाँ से फुल स्टॉप था। जस्ट हम्म। एज द काबा इज अ मीन्स ऑफ गाइडेंस, द मुस्लिम उम्मा हैज बीन मेड द उम्मतुल वसत टू गाइड मैनकाइंड। हम्म। जैसे काबा है ना, तो काबा पूरी दुनिया के सेंटर में, अगर आप देखें ना, अभी इन्होंने ऊपर हम्म। से जाके मूवीज वगैरह बनाई हैं, पिक्चर्स ली हैं, हम्म। हम्म। तो इनको लगा है कि बिल्कुल सेंटर जहां पे दुनिया का है ना, वहां पे वहाँ। आपका काबा है। हम्म। वो भी मिडल में है। तो इसी तरह हम्म। उम्मत वस्त भी जो है वो गाइड, मैन काइंड, जो पूरी आने वाली जितनी भी है उसकी, मैन काइंड की हम्म। गाइडेंस के लिए। हम्म। कुरान भी गाइडेंस के लिए। नबी आखिरी आ चुका, पैगाम पहुंचाया जा चुका, अब आपने क्या करना है? आपने अमल करके दिखाना है और आगे पहुंचाना है, जो हम्म। जितना कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम्म। आपकी इस्तिताअत को देखते हैं, आपको यहाँ पे लाए हैं, कितनी आसानियां है ना यहाँ पे। अब जी। यहाँ भी हम ना कर सके तो फिर तो हम्म। पाकिस्तान में लोग दीन का काम कर रहे हैं। हम्म। एक तो पेमेंट कुछ नहीं, वहां पे लोगों का ये ज़हन बना हुआ कि हमने तो फ्री में काम करवाना है दीन का। जी। हमें तो कुरान सपारा भी ना खरीदना पड़े, मौलवी फ्री में पढ़ा, और बेचारा कहाँ से खाएगा? उसकी तो हम्म। रोजी रोटी है ना, उसने तो करना है। सही बात है, हाँ, हमें उसने घर उनको भी चलाना वही है, अभी करना महंगाई चाहिए। है, बढ़ती जा रही फाइनेंशियली है। स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जी। बिल्कुल। बच्चे हैं, खाना मांगते हैं, बाहर चीजें हम्म। महंगी हैं, हर चीज पे बच्चों का दिल करता है।
اب جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو دین ہے، اور وہاں پہ ٹیوشن کے لیے بڑی بڑی، اور ایک جو کن اسکولوں زین میں بچے اتنی ہوتے ہیں ان اتنی کو فیسیں دین میں دیتے ہیں۔ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوں ہماری ایک بہت بڑی وہ ہے، اللہ ہوں ماشاء اللہ، لیکن کن زین بچے اٹھا کے دین میں ڈال دیتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر انجینئر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں بنا۔ تو یہ ہمیں سوچ بدلنی چاہیے، اسلام کو اچھے بچے دینے چاہیے جو ہیں جی لائق فائق بچے ہوں۔ سورہ ہوں آل عمران میں indeed the first house of worship established for mankind was for that mankind Makkah۔ was that پڑھیں، at Makkah. آپ A پڑھیں آپ۔ guidance, a guidance for all worlds. Muslims previously prayed to Bayt al-Maqdis, where the Yahud used to pray. where the Yahud used to pray۔ Used to pray. ٹھیک ہے نا؟ When یہ بنائی کس نے تھی مسجد؟ مسجد مقدس، یہ جو ہے بیت المقدس، یہ کس نے بنایا تھا؟ مقدس بھی کہتے ہیں، مقدس بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے۔ مقدس لکھا ہوا ہے نا تو مقدس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جی یہود اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی، جنہوں نے بنائی تھی نا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی تھی۔ ہوں کعبہ کس نے بنایا تھا؟ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ ہوں السلام نے بنایا، پھر نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا دوبارہ۔ ہوں ویئر دا یہود یوز ٹو پرے، وہاں ہوں پر اس مسجد کی طرف یہود جو تھے وہ پرے کرتے تھے۔ آگے جی بڑھیں، وین قبلہ چینج۔ When Qibla changed from Jerusalem to Makkah, it showed that the leadership was changing from the Bani Israel to the Ummah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. پوری یعنی جب قبلہ چینج ہوا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ اب یہود کے پاس سے سب کچھ لے لیا گیا اور مسلم امہ کو Hmm. دے دیا گیا۔ اب Hmm. امامت کس کی آ گئی؟ امامت مسلمانوں کی آ گئی، Hmm. یہ بتایا گیا۔ Hmm. لیڈرشپ واز چینجنگ فرام دا بنی اسرائیل ٹو دا امہ آف محمد صلی Ummah اللہ علیہ Muhammad وسلم، Sallallahu Alaihi Wasallam. مسلم امہ کو دے دی گئی Hmm. دنیا کی امامت۔ Hmm. تمہاری لیڈرشپ ہے قیامت تک، لی Hmm. تکونو، Litakunu Lam is of reason. یہ لام جو ہے وہ کس کا ہے؟ ریزن کا ہے، تاکہ، Hmm. تاکہ تم کیا کرو؟ تم ہو جاؤ، تم لام تم ہو جاؤ۔ تاکید ہے یہ ہاں، لام نہیں، لام تاکید زبر والا ہوتا ہے، وہ لام ہوتا ہے۔ اچھا یہ تاکید نہیں والا نہیں ہے اچھا یہ تاکہ کا معنی، سو دیٹ کا معنی دیتا ہے، ریزن اچھا بتاتا ہے، لام تعلیل کہتے ہیں اس کو، اچھا تعلیل، ہوں علت، وجہ، ریزن بتاتا ہے، تاکہ ہوں تم ہو جاؤ شہداء۔ plural of shahid or shaheed witnesses اللہ، Allah when used with witness shuhada it means to witness against ٹھیک ہے، کس کے An-Nasi اگینسٹ؟ کس کے اگینسٹ which بزنس؟ people ہاں، لوگوں، all of mankind all of in this mankind، الناس میں صرف مسلمان نہیں ہے، all of سارے mankind ان کے mankind کے لیے in this دنیا۔ they are witness to the truth and in the hereafter they will be witness Hadith Bukhari Nuh will be called on the day of judgment, and he will say, Labbaik and Sadaik, O ہوں my Lord. ہوں Allah subhanahu wa ta'ala will say, Did you convey the message? He will say, Yes. ہوں Allah will ask his ummah, and they will say that no warner came to us. They will ہوں completely deny that they were warned. ہوں اللہ Allah ولاس، will say, will ask Nuh, who will bear witness in your favor that you conveyed the message? He will say that Muhammad ﷺ and his followers will testify that I conveyed the message to my people. ہم The گواہی Muslims will دیں گے۔ testify. اور ہمیں کہاں Hmm. سے پتا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتا چلا کہ نوح علیہ السلام کوئی تھے؟ اور ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا، وہ تو عرب میں پیدا ہوئے، ان کو کیا پتا؟ نوح، ان قرآن کے اس وقت ہسٹری کی کتابیں تھوڑی ہوتی تھی، تو ان کو قرآن کہاں سے سے پتہ پتا چلا چلا؟ ان کو پتا چلا قرآن، وہی نازل ہونے سے، ہوں ہوں وہی اللہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا۔ دا ہوں مسلمز ول ٹیسٹیفائی، How do we know that Nuh conveyed the message? From the Quran and what the Prophet ﷺ told us. ٹولڈ اس،
अब वो कैसे, हाउ डू वी नो दैट नू कन्वेड, हमें कैसे पता लगा? फ्रॉम द कुरान एंड व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु टोल्ड अस, वहां से पता चला। हम्म हमें भी नहीं पता हम्म चलना था अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, कुरान ना आता, तो हम्म हमें क्या पता था पहले कोई नू भी होते थे। हमें तो हम्म जितनों को बताया गया उतने का ही पता है, जिनका नहीं बताया गया नहीं पता उनका। कितने जी ज्यादा है ना मैसेंजर दुनिया में। हम्म जी। और रसूलु, द मैसेंजर अपॉन, हाँ। अब इसका देख लेते हैं, शहीदन। Shahidan, the messenger will be a witness against you all. You हम्म, refer to the Muslims. Two interpretations. One, according to Ibn यहाँ पे Abbas, he यू जो will. है मुस्लिम्स के लिए है, ठीक है। मुस्लिम्स Hmm. के लिए, हमारे लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो होंगे वहाँ हम पर विटनेस होंगे। और हम किस पर विटनेस होंगे? सारे जितने भी अंबिया आए हैं सारी उनकी बाकी उनकी उम्मत के ऊपर, कि उनके हम्म पैगंबर आए थे, उनके मैसेंजर आए थे, और उन्होंने उनको तबलीग की थी, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था। हम्म और उन्होंने उनका इनकार किया, हम्म बहुत थोड़े से ईमान लाए। तो ये मुस्लिम हम्म उम्मा गवाही देगी। और उनको जी कहाँ से पता चला? उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से पता चला। अब नबी सल्लल्लाहु हम्म अलैहि वसल्लम किसके साथ के खिलाफ गवाही देंगे? विटनेस अगेंस्ट यू, यानी मुस्लिम। हम्म टू इंटरप्रिटेशन, इसकी दो हैं हम्म इंटरप्रिटेशन जो की जाती हैं। आगे पढ़ें। One, according to Ibn Abbas, he will bear witness against you and your actions. हम्म, Two, others that say that he will bear witness that he conveyed the message to everyone. हम्म, During the farewell pilgrimage, he asked the people, "Did I convey Allah's message to you?" They replied, "Yes." He said, "Allah bear witness," three times. हम्म। इसी अल्लाह अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जो लास्ट जो हज आया था, फेयरवेल पिलग्रिम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस पर उन्होंने गवाही ले ली थी कि Hmm. मैंने अपना पैगाम पहुंचा। 3 टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, Hmm. और सब ने कहा हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया, ताकि आखिरत में भी वो क्या हो। इब्ने अब्बास की रिवायत है, ही विल बेयर विटनेस अगेंस्ट यू। कौन ही, Hmm. कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Hmm. एंड योर एक्शंस, तुम्हारे एक्शंस के ऊपर भी होंगे, गवाह होंगे। तुमने क्या किया? तुमने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया या उसको पढ़ा? हर Hmm. बात की गवाही देंगे वो। Hmm. Others says that he will bear witness that he conveyed the message to everyone during the farewell, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया था। आगे पढ़े। If we don't We convey the don't message, convey the message to others, it हम्म, is our fault. हम्म, The Prophet ﷺ said, "Convey from me, even if it is one ayah." Those who are present here should inform those who are not present here. We must pass on what we have learned. If we don't, the Prophet ﷺ will bear witness against us on the day of judgment. हम्म। ये अच्छा भी ठीक है। कितनी मतलब बुद्धि है हम्म तो क्या होगा कि आपने ये यहाँ पे क्या बताया गया है? कि मैं थोड़ा मैसेज दूसरा, आपने वो करना है आगे कोई एक हाँ आया भी कन्वे है तो करना वो है, हमें चाहे एक आगे आया भी करें, ये जी हमारी ड्यूटी है। ये नहीं कि मैं आलिम बनूंगी, मैं आलमा बनूंगी, मैं स्कॉलर बनूंगी तब जाके मैं बताऊंगी। हम्म एक हदीस ऑथेंटिक होनी चाहिए, आया कुरान से होनी चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं गढ़े, हम्म उल्टे आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। हम्म अच्छा, we must pass on what we have learned. If we don't, the Prophet ﷺ will bear witness against us on the day of judgment. उसके बाद फकई फैजा जीना, अब ये सूरह दूसरी है उसकी आ रही है, सूरह निसा की आयत आ रही है। फकई फैजा जीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है ये आयत पढ़ रहे थे रात को, रोए जा रहे थे, रोए जा रोए जा, चुप ही नहीं हो रहे थे, पूरी रात रोते रहे, आपकी दाढ़ी भीग गई, सब कुछ। फकई फैजा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, आपको लाया जाएगा उन सब के ऊपर गवाह बना के। जी पूरी उम्मत भी गवाह बनाई जाएगी, और उसके ऊपर आपको भी गवाह बनाया जाएगा। पूरी उम्मत को किसके ऊपर? पिछली उम्मतों पे गवाह। और आपको अपनी उम्मत पे गवाह किया, आपने पैगाम पहुंचा दिया था कि नहीं?
ایون عیسی علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ جی فرمائیں گے کیا آپ نے کہا تھا کہ میں مجھے بیٹا بنا لے؟ یہ بھی سوال ہوگا ان سے کہ تم نے اپنی امت کو کہا تھا کہ میری عبادت کرنے کی بجائے آپ مطلب آپ کو خدا مان لیں؟ تو وہ کہیں گے میرے سامنے تو ایسا نہیں ہوا، میرے بعد ہوا ہے، اور بعد کی باتیں تو آپ ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جی میں تو نہیں جانتا، بعد کی باتیں تو جو میرے سامنے ہوا ہے میں اس پہ گواہ ہوں، جو بعد میں ہوا اس پہ آپ گواہ ہیں۔ تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میری عبادت کی ہے۔ جو جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں نا دنیا میں، وہ انکار کر دے گی، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ بت ہیں، کوئی بھی کسی کی بھی عبادت ہو رہی ہے دنیا میں، وہ انکاری ہو جائیں گے، ہوں بولیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہوں قبروں والوں کی عبادت ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، وہ بھی انکار، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو ایک ہمیں طرح سے صحیح بھی ہے نا، ان کو کیا پتا، اب آپ زبردستی ان کی عبادت کر رہے ہیں، مطلب وہ کوئی خدا ہے تو نہیں؟ ہم، وہ اب تو جو کر ایک رہے ہیں اللہ تو کے ان کی وہ غلطی ہے تو نا۔ ایک اللہ کا، اللہ کی عبادت کا حکم دے کے گئے نا سارے، تبھی تو وہ یہ اتنے تو بڑے بڑے غلطی ان ولی کی ہے نا جو اللہ کر ہیں رہے کہ ہیں آپ، مطلب۔ ہاں، ہوں تبھی تو وہ اتنے بڑے بڑے ولی اللہ ہیں، ان کی تعلیمات ہوں ہیں۔ ٹھیک ہوں ہے، انہوں نے تو ایک اللہ کی بات کی، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی بات، انی ہوں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ ہوں تو تم لوگوں نے بیٹا بنا لیا، تو یہ تو ان ہوں کو نہیں پتا نا، ان کے بعد ہی ہوا نا ہوں سب کچھ، جی سامنے تو ہوتا تھا وہ، صحیح ہے نا۔ اچھا، ہوں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کی شکایت کریں گے امت کی، اس ہوں قرآن کو مہجورہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، دا ہوں قرآن جی ناریکٹ، اس کے اوپر نہ انہوں نے اس کو سنا، عمل نہ نہیں اس کے کرتے اوپر تھے نہ عمل اس کو کیا، فالو کر رہے تھے نہ جی اس کے لاز اینڈ آرڈرز کو اوبے کیا، کچھ بھی ہوں نہیں کیا۔ ہاں، ہجرت سے ہے نا، جی مہجور۔ اچھا، جالنا پڑے بیٹا۔ Jalna, we did not make such command the Qibla which you used to face Jerusalem. Why was he commanded to face Jerusalem in the first place? ہوں Example, in the middle, first Kaaba, then Jerusalem, then Kaaba again, ہوں سو so دیٹ that we know who would follow the messenger and who is the one who would turn on his heels. یہ وجہ تھی قبلہ چینج کرنے کی۔ Hmm. دیکھیں، کعبہ بنایا، یروشلم میں جو بیت المقدس ہے یہ بنایا گیا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ تو اس سے Hmm. پہلے جو جو کعبہ ہے تو یہ تو شروع سے بنا ہوا ہے نا، Hmm. جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنایا تھا، سب سے پہلے تو جبریل علیہ السلام نے بنایا تھا، Hmm. فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد انہوں جی نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہ ان کی جو امتیں تھیں اس وقت تو بیت المقدس نہیں تھا نا، Hmm. یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں نا، جو سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ Hmm. تو وہ کس کی عبادت کرتے رہے، وہ کس کی طرح منہ کر کے عبادت کرتے رہے؟ وہ بھی اسی کی، کعبے کی ابراہیم طرف علیہ کرتے السلام ہیں۔ خانہ کعبے میں مکے میں آتے تھے نا، ہوں ان کے وہیں پہ زمزم اور وہ سب چیزیں مکہ بعد ہی ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہوں تو یہ سارے کیا تھے، کس کی؟ اور اس سے پہلے والے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے وہ کس، ان کا قبلہ کیا تھا؟ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ ہوں یہ بیچ میں جو بنایا گیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، یہ یہود کے لیے بنایا تھا، یہود اس کی ہوں طرف کر کے عبادت نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد، اور یہود کو بھی پتا تھا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کا قبلہ وہی ہوگا جو پہلے والوں کا ہے، یہ تو ہمارا قبلہ ہے، ہوں یہ تو ہمارا قبلہ ہے، یہ تو مسلمان علیہ السلام نے اس کی طرف تو ہمیں بات کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، منہ کر کے۔ تو ہوں یہ جو مسلم آئے گی اس کا بھی خانہ کعبہ ہی، خانہ کعبہ تو پہلے سے موجود تھا، اللہ بیت پہلا گھر خدا کا جو بنایا گیا، وہ بیت خانے کا اللہ بنا، بنتا ہے جی صحیح ہے نا۔ اب ہوں یہ سارا ان کو یہ ہوا کہ یہ کیا ہے، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وارن کر دیا، ابھی قبلہ ہوں چینج بھی نہیں ہوا، ہوں ابھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیقول السفہاء، اللہ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ہوں بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں نا ہوں وہ اعتراض کرتے ہیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، ہوں وہ وہ کر رہے ہیں۔ اور
पता भी उनको नहीं है कि हम का क्या कह रहे हैं। तो वही है कि फिर ये टेस्ट था अल्लाह ताला ने कहा है, सो दैट वी नो हु वुड फॉलो द मैसेंजर, कौन मैसेंजर को फॉलो करता है और कौन जो होता है वो टर्न ऑन हिज हील हो जाता है। ये एक टेस्ट था। और सब ने ही, जितनी कमजोर ईमान वाले जो लोग थे ना, उनके दिलों में थोड़ा उन्होंने शुबह डाल दिया था, यहूद ने। वो जो बातें कर रहे थे सयकूलु सुफहा, है ना, जी। किस मा वल्लाहुम अन किबलती ही मुल्लती कानू अलैहा, वो सारा उनको बोलते रहते थे। तो वो बेचारे कमजोर, तो वो थोड़ा शक में पड़ जाती थी, लेकिन जो दूसरे थे सारे, वो तो बिल्कुल, बस उनको ये हुआ था कि हमने जो पहले नमाजें उधर पढ़ी हैं, वो कबूल होंगी या नहीं। हाँ कबूल होंगी। तो अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि नहीं, वो तुम्हारी कबूल होंगी, फिक्र नहीं करो, वो ऊपर से हम्म। गुजर चुका है। माई हम्म। यत्तबि और रसूला, कौन पैरवी करता है। इत्तबा, इत्तबा क्या होती है, पैरवी करना, फॉलो करना, कंप्लीटली हम्म। फॉलो करना। हम्म। चलिए पढ़ें बेटा यहाँ से। मन। Man who yattabi'u, he completely follows, हम्म, ar-rasula, the messenger, mimman, from who, yankalibu, he हम्म, turns, ala, upon, akibaihi, his two heels, wa in, and indeed, kanat, it says she was, la kabiratan, surely a big slash heavy thing, हम्म, illa except Allah upon. अलल खाशिन। तो अब यहाँ पर क्या है, मई, मिम मई या नुकलिबु, और कौन है, कौन पैरवी करता है और कौन जो है वो टर्न हो जाता है अल्लाह की बेही हील पर। व इन कानत लकबीरतन, एंड इंडीड इट, ठीक है ना, वॉज श्योरली अ हैवी थिंग, इल्ला अलल खाशिइन, आई थिंक अलल खाशिइन कबीरतन, हाँ, एक मिनट, अल्लाजीना हदल्लाह, सिवाय उन लोगों के, अल्लाजीना, अल्लाजीना हदल्लाह, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। कुछ लोग जो हैं वो पलटे थे, उन्होंने कहा ये क्या है, अभी कभी इधर की नमाज तो कभी इधर, शायद अल्लाह भूल गए हैं या रसूल को ही पता नहीं क्या करना है। तो वो उनका प्रोपेगेंडा चलता तो है ना फिर, है ना कुछ तो असर होता है। जी। तो हम ईमान कमजोर हों तो फिर ऐसा ही होता है। तो हम कहाँ से पढ़ रहे थे, द वन हु टर्न्स, अच्छा, यहाँ से ही पढ़ लें, हु इज ट्रू। Um, Ar-Rasula, the messenger, his, पढ़े पढ़े। his name, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is not messenger. It's not mentioned. Mentioned. Why? Al means the, so the messenger implies the final messenger. हम्म, Also, it shows that he is indeed the messenger who is true. His title is mentioned to affirm his truthfulness, also to encourage us to follow him. ठीक है। आगे, मिमन, मिन प्लस Um, मन। hmm, हम्म, who? Yankalibu, Kaf, Lam, Ba. Kalb is heart. Inkalaba slash Yankalabu is to turn around. हम्म, Akibaihi, dual of Akib, Ain Kaf Ba, refers to the heel of the foot, also refers to the rear end of something. ये जो दो का मीनिंग आ रहा है ना, बोथ, दोनों एड़ियों पर, ये अकीबैन था या नून भी था ना। जी। सही है, तो फिर जब ये मुजाफ बना तो नून गिर गया, है ना, और ये मुजाफ Hmm. इलैह है। सही है ना, आपकी बेन था, नून गिर गया और ये हो गया। अच्छा, Hmm. आगे क्या, द वन हु टर्न्स ऑन हिज हील्स। Means that you completely turn away, you face a different direction. This हम्म, expression is used from someone who completely turns away from something. It shows जैसे extreme मैंने dislike बताया था for ना, what. कुरान में मुहावरे भी इस्तेमाल होते हैं ना। तो जी। अपनी एड़ियों पे से फिर जाना, ये उर्दू में भी यूज होता है ना। जब आप Hmm. एड़ियों पे फिर जाते हैं तो इसका मतलब आप कंप्लीटली फिर गए हैं। सिर्फ अगर आप सिर्फ चेहरा फेरते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर अपने दोनों पैर, ये एड़ियां या आपने फेर ली, तो इसका मतलब है कि आप कंप्लीटली जो है फिर गए।
اچھا، ہاں، یو فیس اے ڈفرنٹ ڈائریکشن، بالکل ڈفرنٹ ڈائریکشن. دس اچھا یہ ہو گیا. who completely turns away from the something. It shows extreme dislike for what one was doing before. جی. ہے نا؟ کون اس کو ڈس لائک کرتا ہے کعبہ کی چینجنگ کو، اور کون اس کو اوبے کرتا ہے. یہ مطلب تھا. یہ ٹیسٹ تھا نا. کعبہ جی. کی جو تبدیلی تھی، پہلے ان کو وہ کروایا گیا ہے، جی. تو پھر اس 17 منتھ وہ کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ چینج کیا گیا. تو ایمان تو ڈولتا ہے نا کمزور ایمان والوں کا. تو وہ اس طرح سے تھا. تو یہ ایک ٹیسٹ تھا. جی. الحمدللہ موسٹلی ایک آدھ کچھ چند کو چھوڑ کے جو پھر گئے تھے، باقی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تھا. He was ordered to face. Jerusalem for a short while, so that Allah will know who is the one who continues to follow the messenger and who will not follow and go back to kufr. ہوں، This test would reveal the sincerity of the believers. ہوں، Sometimes these commands come in ahkam. ہوں، These situations show the true worth of the iman of the person, how sincere he is. ہوں. Allah subhanahu wa ta'ala tests people to see their level of iman. ہمارے Adam بھی تو was ٹیسٹ tested. ہوتے ہیں نا، روز ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے، ہے نا. آگے. جی. Adam was tested through the tree. جب تک آپ کے اوپر مشکل نہیں آتے نا، ایمان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں. ابھی پیچھے Hmm. انگلینڈ میں کتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں گے. Hmm. ابھی تھوڑا سا وہ جو نیو یارک والا تھوڑا اس کو ملے ہے، کامیابی ملی ہے نا. جی. تو مسلمانوں کو تھوڑا چین آیا ہے ابھی. Hmm. ابھی پتہ ہے نا آپ کو کتنی بڑی کامیابی ملی ہے اس کو. جی 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 بچے وہ گھر میں دیکھا. باتیں کرتے ہیں، مجھے تو اتنا ٹائم نہیں ملتا. تو نہیں ہم بتا نے اس رہے کی تھے کہ اسپیچ بھی سنی تھی. بہت بڑی سکسیس ہے یہ مسلمانوں کی امریکہ میں. جی. اب امریکہ کینیڈا والوں کو بھی تھوڑا سا، امریکہ والوں کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملا ہوگا. جی. جی. ہاں، ساری دنیا میں ہی بڑا ہوتا اس ہے. کا ٹف وہ تھا، کمپٹیشن بہت ایون ٹف تھا. انڈیا والوں کو بھی، جی. وہ بھی تو امریکہ کو ہی فالو کرتے ہیں نا. جی. جی. تو وہاں بھی تھوڑا یہ ہے. اچھا، تو یہ ٹیسٹ یہ والے ہوتے ہیں ایمان کے ٹیسٹ. ذرا ایسا ہوں. کچھ ہوا نہیں کہ چلو تمہیں نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یا کوئی اس طرح تشدد وغیرہ، یہ کوئی چیزیں مسجدوں میں جیسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو کیسے ہوں. انسان گھبرا جاتا ہے نا. تو ہوں. یہ ہوتے ہیں ایمان کے ٹیسٹ. یہ چھوٹے موٹے ٹیسٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہوں. ایمان کا ٹیسٹ تو ہو رہا ہے فلسطین والوں کا، جی. جی. غزہ والوں کا. ایڈم ہوں. واز ٹیسٹڈ تھرو دا ٹری. ان کو بھی آزمایا گیا تھا ہوں. ایمان کا ٹیسٹ. ہوں. بنی اسرائیل واز But ٹیسٹڈ Israel تھرو دا was کاؤ. tested through the کاؤ tree. کاؤ کو ہوں. ذبح کرنا تھا. ہوں. ہوں. ابراہیم. Ibrahim was tested through kalimat, and the Muslim Ummah was tested through the change of the Qibla. ہوں. ہر First of امت all, کا امت کو آزمایا گیا. فرسٹ آف hmm, آل دیور. told to leave Makkah and go to Medina. That in itself was a big test. یہ بھی ٹیسٹ تھا، اپنے گھروں کو چھوڑنا ایمان Hmm. کی خاطر. Hmm. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ کا Hmm. حکم ہے جہاں پہ آپ کو آپ کی ایمان کو خطرہ ہو. جیسے اصحاب کہف نہیں تھے، انہوں نے ہجرت کی تھی نا، جی. ایک غار میں پناہ لی تھی جا کے. Hmm. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچا لیا. Hmm. 309 سال کے بعد زندہ کیا. اور وہ Hmm. ایک پرانا سکہ لے کے بازار میں گئے، Hmm. پکڑے گئے. تب پتہ اللہ نے چلا تب. ریویل کر دیا. اللہ نے Hmm. ریویل کر دیا کہ یہ تو وہی ہے، کیونکہ سکہ Hmm. پرانا تھا. اب جی. کھانا تو کھانا تھا، انہوں نے بازار تو جانا تھا، کچھ Hmm. لانا تو تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. جی. تو بڑی احتیاط سے گئے، کچھ نہیں کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ میں آج ہی پڑھا رہی تھی صبح صبح. قرآن کا Hmm. مڈل ہے نا وہ. Hmm. ہوں. تو بڑی نرمی سے بات اتنے کرنا. وقت ہے جی کئی پڑھا ہم نے بھی. ہاں. تو وہ آپ کا پھر ان کا ٹیسٹ تھا بڑا بہت بڑا، اپنا گھر چھوڑ دینا. ایلیٹ طبقے سے تب تعلق رکھتے تھے سب. ہوں. ہوں. ایک کتا لے کے نکل آئے، بس کتا تو ان کے پیچھے پیچھے ویسے ہی آ گیا تھا. ہوں. صحیح ہے نا. جی. تو وہ تو پھر باہر ویسے ہی بیٹھ گئے. اللہ نے اس کو بٹھایا وہاں پہ، لایا بھی اللہ ہی اس کو، ہوں. اور ان کو سلا دیا. تین ہوں. سو نو سال تھوڑے ہوتے ہیں.
ہوں اور پوری کائنات کو اللہ نے اس کی خدمت پہ لگا دیا، ان کی خدمت پہ لگا دیا۔ ہوں سورج کیسے کترا کترا کے جا رہا ہے، ہوں حالانکہ کھلے میدان میں ہے، سورج دائیں بائیں سے نکل رہا ہے۔ جی تو جب آپ اللہ کی خاطر قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کی خدمت کے کاموں پہ لگا دے، ہوں خود بھی لگے ہوتے ہیں۔ جو میرا جی کام کرے گا میں اس کے کام کروں گا۔ آزما کے دیکھ لینا زندگی میں کبھی بھی قربانی ہوں دینا اللہ کی خاطر، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہوں ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے پاس گواہ ہیں۔ دین they were told to face جیروشلم، اس کے یروشلم کی طرف آپ نے ابھی کرنا ہے ابھی وہاں پہ۔ ہوں وہاں سے وہ آئے، ایک ٹیسٹ پاس کر کے آئے تو آگے کہا کہ اگر تم نے بیت المقدس، انہوں نے کہا خانہ کعبہ کے پاس جا رہے ہیں تو ادھر ہی نماز پڑھیں گے نا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں نا۔ تو جی پہلے بھی وہ خانہ کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ مکہ میں جی تھے۔ پہلے ہی کہا تھا پھر وہ تو جی دوبارہ پھر ہاں، تو ابھی یہاں آئے تو انہوں نے کہا وہاں یہاں تو میں اور بھی زیادہ ہے تھوڑا، چلو شاید یہاں پہ کیونکہ قبلہ تمہارا یہی ہے نا، تو یہ خانہ ہوں کعبہ کی طرف ہی نماز پڑھیں گے۔ ہجرت کر کے آئے ہیں اتنی طرف، وہاں پہ پھر 17 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر ہی نماز پڑھو، بیت المقدس کی طرف۔ جی That was an even greater test. Even جی جی ہم پڑھیں eventually they were told to face the Kaaba again. This process again. showed who was really a sincere believer and who was not. ہم، Um, the commands that Allah subhanahu wa ta'ala gives آپ us. آپ کی آواز خراب ہو گئی ہے، Um, the command آپ کو ہوگا کہ تھوڑی کٹ رہی ہے۔ um, the commands that Allah subhanahu wa ta'ala gives us, the prohibitions that He gives us, He's testing our iman, how sincere we are. The command that اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives us، ٹھیک ہے نا، اور جی بس جو بھی کمانڈز اللہ نے دیے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ سب ہمارا ٹیسٹ ہے۔ جی جس طرح آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا نا جی درخت سے، کہ اس درخت کو نہیں کھانا، اسی طرح ہمیں بھی روکا گیا ہے بہت ساری چیزوں سے اور ہمیں وہ نہیں کرنے۔ جی صحیح ہے نا؟ تقوی کیا ہوں ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گناہوں سے اللہ کا بچنا ڈر ہے نا؟ اللہ کا ڈر لیکن جی ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو حکم دیا گیا اس کو کرنا بھی ہے۔ ہوں ہم صرف کیا کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، ہم نہیں کریں گے، لیکن جو کرنا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ دونوں جی کرنے جی رکنا بھی اور دونوں جو کرنے کرنا کا ہے، فائدہ بھی ہاں، ورنہ تو آپ کا تقوی کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا۔ آپ صرف گناہوں سے بچ رہے ہیں نا، جو کرنے کا حکم ہے وہ تو نہیں کر رہے۔ ہوں تو آدھا ایمان میں ہے نا، پورے میں تو نہیں۔ ہوں جی اچھا، واٹ از مینٹ بائی سو دیٹ وی کم ٹو نو؟ پڑھیں بھائی۔ One, it means so that it can be made known to the other people. The Prophet ہوں sallallahu alaihi wasallam, ہوں he knows everything, but he makes different events occur to show things, to make things known to the people. ہوں He wanted to show the Prophet sallallahu alaihi wasallam who was really sincere in his faith. ہوں Two, others say that this means so that we can distinguish those who are sincere from those who aren't. ہوں، صحیح ہے۔ اچھا، اب اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ ہی وانٹیڈ ٹو شو دا پروفٹ، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ان میں سے ایمان کس کا کہی، اللہ کو پتہ نہیں تھا کس کا ایمان صحیح ہے کس کا نہیں ہے؟ سب کو پتا تھا، اللہ کو سب پتا تھا۔ اللہ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کس کا ایمان کمزور ہے۔ دیکھیں یہ پڑھے نا، اٹ مینس سو دیٹ اٹ کین بی میڈ نون ٹو دا ادر پیپل۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ بھی صلی پتا اللہ چل علیہ گیا۔ وسلم ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے ہوں پاس ہے نا۔ ہی نوز ایوری تھنگ بٹ ہی میکس ڈفرینٹ ایونٹس ٹو اگر ٹو میک تھنگز نون ٹو دا پیپل۔ ہوں اللہ تو سب جانتا ہے، ہی جو ہے نا یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے لیے یوز ہوا ہے جی ٹھیک ہے، اور باقی ادر پیپل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کہ کون اپنی ایمان میں صحیح ہے اور کون کمزور ہے۔
तो वो अल्लाह हम्म ताला फिर टेस्ट करते हैं ताकि लोगों को पता हम्म चल जाए। हम्म हमारे ऊपर भी जब परेशानी आती है ना, तो अल्लाह को नहीं पता होता कि इसका ईमान कितना है, क्या है, क्यों अल्लाह ताला हमारे परेशान, ताकि हम्म वो कहते हैं ना, खरा और खोटा अलग हो जाए। हम्म जैसे आप सोने को पिघलाते हैं ना, हम्म रॉ होता है तो उसको पिघलाते हैं और उसमें से मट्टी चून सब चीजें अलग करते हैं और सोना अलग इम्प्योरिटीज करते हैं। अलग कर देते हैं जी। हाँ, इम्प्योरिटी अलग होती है। बिल्कुल हम्म वही चीज है। हम्म हम गोश्त को उबालते हैं, ऊपर सारा आ जाता है ना, हम्म तो वो क्या होता है, वो झाग होता है। हम्म वो तो काम की चीज नहीं होती ना, वो तो फेंक थैंक यू। देते हैं। हम्म तो इस जो नीचे रह जाता है वो सही होता है, हम्म तो उसको निकाल के फेंक ही देना चाहिए। उसके बाद क्या, अल्लाह ताला भी फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं ऐसे लोगों को, काम के नहीं है, दुनिया छोड़ो, जान छोड़ो। अदर सेज हम्म दैट दिस मीन्स टू, ये पढ़ लिया हमने, हाँ। इसका क्या जी। मीनिंग है? दिस um, मीन्स सो दैट वी डिस्टिंग्विश दोज हु आर सिंसियर फ्रॉम दोज हु आर, बस वही मतलब है। Others says जी that it means so that we can we can establish the establish recompense, rewards, and punishments. हम्म, His knowledge is complete, but the recompense सही है। आगे क्या, happens after the happens after the action. The reward or punishment is given after the action. reward or punishment is given after the action, अमल Hmm. के बाद। Hmm. आप दिल में कुछ भी सोचते रहें आप, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको उसका ना रिवॉर्ड मिलेगा और ना आपको उसकी सजा मिलेगी। जी। ठीक है ना? तो कहते हैं इरादा कर ले नेकी का तो उसका भी अजर होता है, लेकिन जब तक आप उसको करते नहीं है ना, तो वो थोड़ा ही अजर होता है ना, कि आपने इरादा ही किया ना अभी। और अगर आप कर लेंगे, मसलन आप कोई बुराई करते हैं, बुराई का इरादा करते हैं, जब तक आप बुराई कर नहीं लेते आपको उसकी सजा नहीं मिलती, आपका वो बुराई दिख ही नहीं जाती। जी। कानत क्या है? Cannot, and surely it was. It refers to this incident was a big thing. हम्म Um, La kabiratan kahbara, feminine of kabir, हम्म used for something grand, big in quantity, size, severity. Here it means it was very difficult, except for those whom Allah subhanahu wa ta'ala has guided. What does this mean? There are two types of hidayah. हम्म Here it refers to those who were given ilm, knowledge and tawfiq, हम्म because they accepted the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. The commands that Allah subhanahu wa ta'ala gives are difficult for some people, but they are not difficult for those whom He has guided. हम्म When a person gains ilm, he develops a fear of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the knowledgeable ones who fear Allah subhanahu wa ta'ala. When one fears Allah, then he doesn't dislike Allah's commands, nor are they difficult for him. हम्म। तो समझ आ गई बात? जी। बात ये है सारी कि एक तो हिदायत इल्म होती है, इल्मी हिदायत होती है, एक तौफीकी हिदायत होती है। ठीक है? कि आप अमल भी कर सके। अमल भी सिर्फ इल्मी का फायदा नहीं है, हम्म इल्मी। रट्टा होगी। हाँ, उसके बाद तौफीक है, तौफीक अमल में ढलने का नाम है, और अगर हम्म इल्म अमल में न डले तो वो वबाल होता है, हम्म उसके ऊपर सजा मिलती है, पूछ पूछ होती है कि क्यों नहीं अमल किया। इल्म एक तो हासिल आपको ना पता है कि करने का आपने भी फिर भी पूछ, नहीं किया। इल्म हासिल जी। ना करने का भी पूछा जाएगा, ये नहीं कि ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा हम्म जाएगा आपने क्यों नहीं इल्म हासिल किया। हम्म आपके पास नबी आया, रसूल आया, किताब थी आपके हम्म पास, क्यों नहीं, पढ़ाने वाले थे, सब कुछ था, इसका भी। जहाँ हम और फिर दुनिया अमल की ना करना किताबों को डबल होता है। समझते हैं जी, वैसे ही हमें कुरान को भी तो समझना चाहिए ना। जैसे बहुत सी दफा हम मतलब कोशिश ही नहीं करते कि उसको प्रॉपर समझें, उसकी मीनिंग, सारी चीजों को। हर कोई सोचता है बस उस पर टाइम लगाने का क्या, बस पढ़ तो लिया। सबसे पहले तो आपने नॉलेज लेना है ना। हम्म हिदायत कब मिलती है? हिदायत जो होती है ना, अल्लाह ताला नहीं देते जब तक आपके हम्म अंदर जो है ना, आप, अल्लाह ख्वाहिश ताला है। आपकी कोशिश को देखते हैं कि आप उसको, हम्म हाँ, हिदायत लेने की आपके अंदर कितनी तड़प है, आप उसके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, हम्म फिर अल्लाह ताला देते हैं। अगर आप नहीं, आपको परवाह ही नहीं है, तो अल्लाह ताला कहते हम्म ठीक है, मुझे भी परवाह नहीं। सही बात। अल्लाह जीना हदल्लाह व मा कान, अब ये आ गया। ये वो हम्म लोग हैं जिनको हिदायत दी, यानी गाइड किया अल्लाह ने। हम्म
यानी बाकी लोग तो भटक गए, फ्यू हम्म। ऑफ देम जो कमजोर ईमान वाले थे या जो थे, वो हम्म। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है रोज काबा, वो उनकी बातों में आ गए, हम्म। उनका प्रोपेगेंडा कामयाब हो गया। लेकिन बाकी जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, गाइड किया था, वो बच गए। वमा हम्म। कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह, ली Mama and युदिया, not Kana, he हाँ was. ली युदिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जबर आ रही है ना मुजारे पे, तो क्या है यहाँ पे, ली जबर दे रहा है, नहीं, ली तो नहीं दे रहा है जब। अनहिडन है यहाँ पे, हम्म। अनहिडन है। और इस ली का मानी लामु तालील इसी को तो कहते हैं ना, हम्म। वजह बताई जा रही है ना, हम्म। ताकि वो जाया करे, दैट ही हम्म। वेस्टेड हम्म। ईमानकुम, ईमानकुम का क्या है, तुम्हारे ईमान को, तुम्हारा योर ईमान को। ईमान। इन हम्म। अल्लाह बिन बिन नासी लरऊफुर रहीम, अल्लाह ताला जो है लोगों के साथ बहुत ज्यादा है। अच्छा, ली युदिया को पढ़ लें। Um, Lam gives meaning of so that, do dia ain. Dia means to waste or let something perish, get ruined and destroyed. Allah subhanahu wa ta'ala was not going to waste your iman by not rewarding it. On the हम्म, contrary, He will give reward for your iman. अच्छा जी, तो युदिया ये जाया करना है, हमारी उर्दू में भी होता है ना, जाया करना, है ना। जी। जाया का लफ्ज उसी से बना हुआ है, उसमें भी यही लफ्ज होते हैं तकरीबन, ये या अलिफ में चेंज होता है, जाया बन जाता है, इसी तरह लिखा जाता है ना, जाया करना। तो अल्लाह ताला किसी का ईमान जाया नहीं करते, यानी नमाजों की फिक्र थी बेसिकली उनको, कि हमने वो जो नमाजें उधर पढ़ी हैं वो जाया तो नहीं हो गई, तो अल्लाह ने कहा कि मैं किसी का ईमान जाया नहीं करता। हम्म। ठीक है, तो वो ही बताया जा रहा है, डिस्ट्रॉयड। अल्लाह आगे पढ़े, नॉट Allah गोइंग टू वेस्ट योर ईमान बाय नॉट रिवॉर्डिंग इट, ये बिल्कुल भूल जाएं। अल्लाह सब जानते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सब का हम्म। रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, ही विल गिव रिवॉर्ड फॉर योर ईमान। आगे ईमान, नो ईमानकुम, ये पढ़ लिया आपने। Iman here refers to Salah, those prayers that were performed while praying in the direction of Bayt al-Maqdis. हम्म, These prayers would be rewarded. Before the Qibla was changed to the Kaaba, there were some Muslims who passed away and never got to face the Kaaba. हम्म, Some people wondered if their Salah would be accepted. Allah subhanahu wa ta'ala is reassuring them that their Salah will not be wasted as they were obeying Allah subhanahu wa ta'ala. Iman here refers to Salah. How come Salah is called Iman? Why is Iman used here? Several reasons have been given. 1. Salah includes statements, words, heart, and certain amal. हम्म, Iman is belief in the heart as well as the action. That's why it is called Iman. हम्म, 2. Salah is an action or amal. An action proves what is in the heart of a person. If there is no amal, there is no Iman in the heart, and vice versa. The Salah proves what is in the heart. गुड, सही, समझ आ गई। जी। जी। ईमान नहीं, अमल नहीं, तो कुछ भी नहीं। दोनों चीजें होनी ईमान चाहिए। अमल के साथ है, अमले साले के साथ है। हम्म। ईमान बिद्दात के साथ नहीं है। वो अमल होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, हम्म। उसमें रियाकारी भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह की जात के लिए वो अमल होना चाहिए, हम्म। अल्लाह को राजी करने के लिए। और दूसरी बात क्या है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। जी। ये जो इतनी बिदआत आ गई है ना, और इतने फिरके बन गए, ये सब कुछ ये काम नहीं आएगा। हदीस अबू दाऊद, दाऊद, ये कौन थे, The दाऊद ये वो है ना, सहाबी है ना। जी। नहीं नहीं, ये अबू दाऊद ये किताब का नाम है ना, उसकी हदीस है, रेफरेंस है, बुक है ना। जी। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, तो ये सही, मुझे चार बुक्स हैं, ये उनमें से आप कह रही हैं एक उसकी है। अबू दाऊद के बारे में पूछ रहे हैं। जी जी, ये आप जो चार बुक्स हैं उनमें से एक बुक है। 6 बुक्स है ना।
अच्छा। ऑथेंटिक 6 बुक्स हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, और भी हैं, अब उसमें ये भी है। 6 बुक्स हैं अच्छा। टोटल। अच्छा उनको सही। बोलते हैं सित्ता, साहे सित्ता, यानी अच्छा। 6 किताबें सही हैं, ऑथेंटिक है, ये मतलब है। अच्छा सही। सित्ता मतलब 6 होता है ना, जी जी। तो वो 6 हैं। अच्छा। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसमें ये अबू दाऊद की भी है ना, जी। जिस तरह um तिरमिजी किया है उस तरह। the Prophet ﷺ said that Iman has over 70 branches, हम्म। most excellent of which is a declaration of faith, the हम्म। humblest of which is a removal of a bone from the road. हम्म। When a person removes something from the path, he is doing it to please Allah. हम्म। Iman is not just about rituals, good deeds are part of Iman. हम्म। Modesty is a branch of Iman. हम्म। Modesty is in the heart. Iman includes actions of the tongue, the limbs, and the heart. It is not just something abstract, conceptual. It is manifested through a person's actions. मॉडेस्टी होता क्या है? किसे कहेंगे Um, मॉडेस्टी इज इन द हार्ट? like मॉडेस्ट कहते हैं, जैसे हम वो लिबास में भी कहते हैं कि मॉडेस्ट वो पहनो, यानी हया। एक तरह की मयाना जी जी। हया। हया। हम्म। हम्म। हया जो होती है ना, शर्म, हम्म। वो हर चीज में होनी चाहिए, बातों में होनी चाहिए, कपड़ों में होनी चाहिए, हम्म। एक्शंस में होनी चाहिए, हर तरह की है। ये पार्ट जी। ऑफ ईमान है, पार्ट। ये है, दिल में होती है ना। हम्म। हया दिल पे हो, दिल में होगी तो बाहर भी नजर आएगी। फिर आप आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। हम्म। आगे क्या है? ईमान इज यूज्ड हियर सो So दैट। that people realize the importance of Salah. If one doesn't perform Salah, his Iman is deficient. कितनी फिक्र Salah, थी उनको नमाज की, कितनी फिक्र थी कि हमारी नमाजें जाया ना हो जाएं जो हमने पढ़ी हैं। फिक्र में पड़ गए, पढ़ के भी फिक्र में पड़े हुए हैं, कहीं जाया तो नहीं हो जाएंगी। और हमें तो बगैर पढ़े भी कोई फिक्र नहीं होती। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे हैं, खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि नमाजें हमारी जाया हो जाएगी। इफ वन डजंट परफॉर्म सलात, हिज ईमान इज पढ़े। Iman is you. Okay. Salah distinguishes between a believer and a non-believer. The हम्म। first thing we will be questioned about on the day of judgment is the Salah. हम्म। Allah subhanahu wa ta'ala does not waste the reward of anyone who obeys him. जो भी ओबे करता है अल्लाह ताला को, उसका रिवार्ड तो जरूर मिलेगा उसको। फिर फर्क क्या हो गया? इसलिए तो डे ऑफ जजमेंट रखा गया ना, कि सबको दे अल्लाह ताला, जो जो भी। दुनिया में पूरा नहीं दे सकते ना, पूरी सजा मिल सकती किसी को। एक आदमी ने 100 आदमियों को मार दिया, हम्म। उसको दुनिया में मिलेगी सजा, एक उसको मार के फांसी दे के 100 का तो पूरा नहीं होता ना। जी। तो इसी तरह रिवॉर्ड भी किसी, बाज दफा रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है चीजों का, तो हम्म। वो दुनिया में नहीं पूरा हो सकता, अल्लाह ताला आखिरत में। और दुनिया में पूरा हो गया तो फिर फायदा क्या? जी। सहाबा तो रोते थे कि दुनिया में क्यों अल्लाह दे रहे हैं, आखिरत हम्म। में नहीं देंगे शायद। हम्म। तो वो इतना डर जाते थे, और हम दुनिया में ही मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, हम्म। आखिरत भी मांगे साथ। कद नरा हम्म। तकल्लुब वजहिका फिस समाए। अच्छा, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है ना, जी। यहाँ से शुरू करना है। कद, God, in fact, Naraya, we see या नहीं पढ़ेंगे, the नरा God. नरा ही पढ़ेंगे, या नहीं पढ़ेंगे। जी। ये साइलेंट है, ये हम्म। इसके ऊपर डाला है, लेकिन इसके ऊपर होता नहीं है। या से पहले जबर आ जाए तो खड़ी जबर ही पड़ी जाती है। हम्म। नरा We see the Galuba repeated turning, which तकल्लुबा, तकल्लुबा। the Galuba repeated turning, ये ये Wajhika, माजी your. माजी है ये, ठीक है ना। ये हम्म। माजी है, लास्ट में जबर आ रही है। और ये हम्म। ता की वजह से इसको मुजारे नहीं बनाना,
ये बाप जी। ताअल्लुम से है ना, ताअल्लमा या हम्म। ताअल्लमु, तो उसमें शुरू में हम्म। ता लग जाती है हम्म। ना। ताअल्लमा हम्म। माजी में ही ता लग जाती है। एक होता है बाब अल्लामा। हम्म। अल्लामा इज डिफरेंट, अल्लामा युअल्लिमु तालीम। एक होता है हम्म। ताअल्लमा, ये ताअल्लमा है, ठीक है। अच्छा। ये तकल्लुबा, तकल्लुबा क्या है, ये आपका तकल्लुबा पेश आ रही है ना यहाँ पे। हम्म। यहाँ तो पेश नहीं आ रही ता अल्लाह माँ पे, तो ता अल्लाह माँ, इसमें तो कहीं पेश नहीं आ रही, तो यहाँ तो पेश आ रही है, तो ये माजी नहीं हो सकता, हम्म। ये माजी नहीं हो सकता। फिर ये हम्म। क्या होगा, इसमें तो माजी में तो पेश नहीं आ रही, तो यहाँ आ रही है, तो क्या होगा, ये बाप का नाम होगा। ये मजहूल होगा। नहीं, मजहूल में तो यहाँ पेश आती है ना। मज़ारे होगा, फिर मज़ारे होगा। ये नाउन है, ये मस्दर है। तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुम, जी। तकल्लबा यतकल्लबू यतकल्लबू तकल्लुब। हम्म। ये असल में क्या था, तकल्लुबुन था या तकल्लुबन, ये मस्दर है। ताल्लमा या ताल्लुम, ताल्लुम बनता है कि नहीं बनता, बनता है ना हम्म। ताल्लुम, तो ये हम्म। ताल्लुम ही है ना, हम्म। ताल्लुम। अब ये जबर क्यों आ रही है, क्योंकि इसका मफूल बन रहा है। जी। मस्तर को, मस्तर पे जबर लाई गई है ना, नाउन पे जबर लाई गई है मफूल बनाने के लिए। हम्म। समझ आई, ये जी। मुजारे नहीं है, ये मस्दर है। अल्लामा युअल्लिमु तालीम तो आपको पता है ना। जी। जी। अगर ताल्लमा मैं बताऊं, ताल्लमा ये डिफरेंट बाब है। तबस्सम ये हम्म। तबस्समु, तबस्सुम, हम्म। तबस्सुम, तो ये तबस्सुम नहीं है, तबस्सुम। जबर क्यों आई है, क्योंकि इसका मफूल बन रहा है। हम्म। तो ये बाप वो वाला है, फिर इसके ये बाद। बाप का मस्तर है। हम्म। ताअल्लमा ये बाप ताअल्लम आया ना, ताअल्लमा या ताअल्लमु ताअल्लुम, हम्म। तो ये वाला है। तो इसमें ये उसका मस्दर है, ये असल में यहाँ पे सुकून था। हम्म। तकल्लुब, तफाउल, बाप तफाउल है ये। अब हम्म। इसमें क्या है आपका, जब पीछे इसके मफूल बनाना है, यहाँ पे नहनु फाइल है, मफूल बनाना है, तो इसको जबर दे दिया ना, तकल्लुबा कर दिया, वजही का। अब देखें, ये यहाँ पे जेर क्यों आ रही है, क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है, तो मुजाफ फेल तो नहीं बन सकता ना। क्या जी। बनता है, इसम मुजाफ बनता है। हम्म। इसम, मस्दर भी तो इसम ही होता है ना, जी। मस्दर इसम होता है ना। जी। जी, मजदर समझी। हम्म। तकल्लुबुन, तकल्लुबन, तकल्लुबा, ये सब क्या है, ये इसम है, और ये मुजाफ हम्म। बन रहा है, इस पर इस्लाम और तनवीन नहीं है, तो ये आपका जेर आ रही है, हम्म। ये मुजाफिला बन रहा है। हम्म। तुम्हारे चेहरे का फिरना, रिपीटेडली फिरना, हम्म। कद नरा, इनफैक्ट वी सी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम देख रहे हैं हम्म। तेरे चेहरे का रिपीटेडली टर्निंग, उसकी देख रहे हैं, किस तरफ, जी। फिस समाई, आसमान की तरफ। हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के खाना काबा में देखते रहते थे। हम्म। अब तो मदीने में आ गए थे ना, हम्म। तो मदीने में देखते रहते थे बैठ के, बैठ जाते थे आसमान की तरफ देखते थे, कब मेरा किबला चेंज होगा, हम्म। क्योंकि उनको पता था मेरा किबला, मेरी उम्मत का किबला जो है ना, वो खाना काबा है। यस, ये तो यहूद का किबला है जिसकी तरफ हमें नमाज पढ़ाई जा रही है, हमारा थोड़ी है, बनी इसराइल हम्म। यहूद के। फलनुवल्लियन्नका, कितना बड़ा वर्ड है ना। जी। अब इसमें जो लाम आ रहा है, ये श्योरली का आ रहा है ना, श्योरली। हम्म। हम्म। ये और वो नो, ताकीद वाला है। ये ताकीद वाला है, जबर हम्म। वाला। हम्म। सो श्योरली वी विल, हम्म। नून से आ गया आपका वी, और वल्ला क्या होता है, वी विल डेफिनेटली, हम्म। डेफिनेटली का मानी आ रहा है ये नून से, यन्ना का, हम्म। नून मुशद्दद से आ रहा है, हम्म। डेफिनेटली का मान।
एक तो ताकीद के लिए ये आ गया, ऊपर से ये भी आ गया, हम्म। और बीच में तो नुवल्ली ही रह गया ना। हम्म। नुवल्ली, वल्ला या नुवल्ली यू, फला हम्म। नुवल्ली यन्ना का। अब ये जो नून लाते हैं इससे पहले जबर लगाते हैं, तो वो जबर इसलिए आ रही है। हम्म। ठीक है ना, यन्ना का क्या है, आप है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम, हम्म। नबी सो श्योरली वी विल डेफिनेटली टर्न यू, हम्म। हम फेर देंगे आपको, यानी आपका चेहरा। हम्म। ठीक है, किबलतन, किबले की तरफ, एक किबले की तरफ, हम्म। तरदा, हाँ तरदा, जिस जिस पर आप राजी होंगे, या जिसकी आप, वो आगे जाके पढ़ लेंगे ना। तो समझ आया कैसे मीनिंग करना है कद। अब लकद नहीं आया, अगर लकद आ जाता तो फिर अल्लाह ताला कसम खा के कहते, जरूरत नहीं थी ना कसम खाने की। कसम तो किसी चीज पे खाई जाती है ना। यहाँ पे तो जी। कोई नहीं है, अल्लाह ताला सिर्फ बता रहे हैं इनफैक्ट, श्योरली वही नरा, विसी तकल्लुब वजही का, ये पूरे डबल मुरकब इजाफी बन रहा है, कंपाउंड। हम्म। तीन तीन इसम होते हैं ना, तीन इसम, तो दो मुरकब इजाफी बनते हैं, ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये भी इसम है। हम्म। फिस समाई मुरकब जारी, फलनुवल्लियन्नका, फलनुवल्लियन्नका, हम्म। so surely we will definitely turn you किबलतन, किबले की तरफ। लराउफुन क्या है, पढ़े। Lara'ufun, Ra, Hamza, Fa. हम्म। Rafa is used for affection, kindness. It is हम्म। intense mercy. Rafa is the tenderness of one's heart, fatherly affection. हम्म। To be kind to someone in order to remove some affliction or pain from them that they are suffering from. Example, if you see someone carrying a heavy bag, you offer to help out. Rafa is to be filled with the feelings of compassion when you see someone in a difficult situation. हम्म। Rafa is not just to feel bad, but also to do something to remove the suffering slash affliction from them. Allah subhanahu wa ta'ala is very affectionate, gentle, kind. When he sees people suffering, he removes that from them. राउफ जैसे वालिद होते हैं ना, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है वालिद, बच्चों के ऊपर होता है ना, बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। बाज वालिद ऐसे होते हैं, खुद भूखे रहते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। और माएँ भी होती है, माएँ भी बहुत कुछ करती है, लेकिन यहाँ पर जो कि अल्लाह ताला के बारे में नाम आ रहा है ना, तो जी। वो वालिद वाली मोहब्बत मोहब्बत है। ठीक है, जिस तरह वालिद एक अपने बच्चों पे होता है। उसके बाद रहीम क्या है, मर्सीफुल Um, भी है। he is also very merciful. हम्म। Lessons. Allah subhanahu wa ta'ala changed the Qibla to give a specific direction of prayer for the Muslim Ummah. He changed to Qibla to Jerusalem to test the true believers. हम्म। The Ummah Wasata is a means of guidance. We have to recognize our role to spread the message of Islam. हम्म। तो उम्मत वसत क्या है, इज अ मीन्स ऑफ गाइडेंस। अब गाइडेंस का जो मीन्स रह गया ना, बस वो यही रह गया, उम्मत वसत। जी। वही आगे करेगी तो होगी, हिदायत को आगे। हम्म। ठीक है, और आपका काम किसी को हिदायत देना नहीं है, आपका सिर्फ मैसेज कन्वे करना है। हिदायत देना हम्म। अल्लाह का काम है। अल्लाह के काम। वो जिसके दिल में देखते हैं कितना तड़प है, कोशिश कर रहा है वो हिदायत पे आने की, अल्लाह ताला उसको हिदायत हम्म। खींच के ले आते हैं, हम्म। लोगों में से खींच के बाहर अपनी तरफ ले आते हैं। हम्म। ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि मैं खींच के ले आता हूँ लोगों को अपनी तरफ। कद क्या है, इनफैक्ट। In fact, certainly comes before fail mudare. कद जो होता है ये फेले मुदारे से पहले भी आता है, वैसे तो माजी के पास आता है ना, जी। माजी से पहले आता है कद। लेकिन फिर यहाँ पर सर्टेनली का मानी देने के लिए, श्योरली का मानी देने के लिए मुदारे पे भी आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम्म। नरा। Nara, Ra, Hamza, Ya. When qad comes before a fi'l mudari, gives the meaning of the repetition of the verb or हम्म। action that follows.
It means we used to see it repeatedly. हम्म, Nara means we see. यानी हम भी देख रहे हैं आपको, आप भी आसमान को देख रहे हैं और हम भी आपको देख रहे हैं, रिपीटेडली हम देख रहे हैं आपको। जी। तकल्लुबा, काफ Kaf लाम बा। lam ba kalb. Takallub is to turn again and again. अगेन एंड अगेन, तकल्लबा या तकल्लब, यानी ये जो बाब होता है ना, तकल्लुम, तकल्लुम भी कहते हैं ना, तकल्लमा या तकल्लम, तकल्लुम, तबस्सम, ये तो ये एक ही बाब है। ताल्लमा या ताल्लमु, बार बार दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। ताल्लमा या ताल्लमु, ताल्लुम, ये जो बाब होता है ना, इसमें जो होता है ना, तकल्लुफ होता है इसमें। यानी तकल्लुफ क्या होता है, ये इसमें देखे ना, टू टर्न अगेन एंड अगेन, हम्म। कोशिश से कोई काम करना। हम्म। जैसे आप कहते हैं ना कि तकल्लुफ ना करें, हम्म। क्या कहते हैं, मेहमान जब आता है तो मेहमान कहता है तकल्लुफ नहीं करना। तकल्लुब। हाँ, हम्म। यानी ज्यादा मेहनत नहीं करना, तकल्लुफ में नहीं अच्छा। पड़ना, है ना। हम्म। तो हम करते हैं ना, हम तो मैं कहते इसको हैं समझती थी जैसे शाय ना हो आप, तकल्लुफ का मतलब मुझे लगता था उर्दू में, यानी इसको कहते हैं शर्माओ नहीं। हाँ, तकल्लुफ का मतलब शर्माना नहीं होता, तकल्लुफ का मतलब होता है कि तकलीफ नहीं करना। अच्छा, यानी तकलीफ नहीं करो। हाँ। यानी आप अपने आप को मुश्किल में नहीं डालो। अब देखें, हम्म। तबस्सुम, जो हम मुस्कुराते हैं तो थोड़ी बहुत तो हमें एफर्ट डालनी पड़ती है ना। अगर आपका हम्म। मूड नहीं हो रहा और आपको मुस्कुराना पड़ रहा है, तो एफर्ट तो हम्म। डल रही है। तकल्लुफ हम्म। में भी एफर्ट, तबस्सुम में भी डल रही है। ताल्लुम में भी, हम्म। ताल्लमा या ताल्लमू में भी आप सीख रहे हैं, तो एफर्ट तो डल रही है ना। अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। जी। आप ताल्लमा का मतलब होता है खुद सीखना, अल्लामा का हम्म। मतलब होता है टीच करना। मैं हम्म। मैं टीच कर रही हूँ ना, और आप जो हैं वो बाप तफाउल से हैं, जी। मैं बाप तफील से हूँ। आप अल्लामा सिखा रही हैं युअल्लिम, और हम। मैं अल्लामा युअल्लिमु तालीम से हूँ मैं। आप हम्म। ताल्लमा, या ये दो डिफरेंट बाब हैं। और कुछ भी हम्म। नहीं है, माजी में सिर्फ ता लगाना है आपने, मुजारे में तो फिर दोबारा लगेगा ना, या ताल्लमू, है ना, हम्म। तताल्लमू, है ना। जी। और वो सारा बनता है आगे, वो उसी तरह से बनता है जैसे बाकी कोई बनता है। वजही का हम्म। क्या है, ये भी आपका इसम है, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है ना। जी। एक मुजाफ ये बना। अगर दो मुजाफ आ जाएं और दो मुजाफ इलैह आ जाएं तो वो कंपाउंड मुरक्कब इजाफी बन जाता है। हम्म। इसमें एक ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है, ठीक है। हम्म। और फिर ये मुजाफ भी है, ये मुजाफ इलैह है, तो दो हो गए ना मुजाफ, एक ये मुजाफ है, एक ये मुजाफ है। और ये हम्म। मुजाफ इलैह है और ये मुजाफ इलैह है। तो पार्टनरशिप में काम हो रहा है ना। हम्म। ये बीच वाला जो है ना, ये दोनों के लिए काम कर रहा है। वजही जो है ना, दोनों के लिए हम्म। काम कर रहा है। हम्म। कैसे कर रहा है दोनों के लिए, पहले वाले के लिए क्या बन रहा है, वजही। इस वाले के पहले लिए वाली क्या, इसके लिए क्या बन रहा है, जेर आ रही है ना। वो मुजाफ, ये उसके लिए एक मुजाफ के एक दफा मुजाफ बन रहा है और एक दफा मुजाफ इलैह बन रहा है। पहले क्या बन रहा है, पहले मुजाफ इलैह बन रहा है। बाद में क्या बन रहा है। बाद में मुजाफ बन रहा है। और मुजाफिला क्या है फिर इसका, कहाँ इस होगा? का हो। अब का अंता। तो का ही होता है ना, वो उसके नीचे जेर तो नहीं आ अंता। सकती। हम्म। तो वजही का, अगेन एंड हम। अगेन। अब यहाँ से पढ़ लें जल्दी से। वी वुड सी योर फेस टर्निंग अगेन एंड अगेन टुवर्ड द स्काई, दिस कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज। नंबर वन। The Prophet ﷺ would continuously look to the sky up and down, or two, he would look right and left. Why would he look to the sky? Because he हम्म, was the last messenger and he knew that eventually he would face the Kaaba in prayer. He हम्म, longed to face the Kaaba. Since he knew that this command was going to come, he would look up, right, and left out of anxiousness, anticipation for Angel Jibril to come with the hukam. We हम्म, can see the love for of Allah subhanahu wa ta'ala for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He didn't हम्म, just start praying to the Kaaba even though he knew eventually he would. He waited हम्म, patiently for the command to come from Allah subhanahu wa ta'ala. हम्म। We अच्छा are allowed to look up. अच्छा, लुक आपकी तो बात समझ आ गई, राइट एंड लेफ्ट की क्या बात है।
That's like sub, like everywhere. सलाद में ऊपर नहीं दे सकती। अभी मेरा पीछे पोता आया हुआ था पिछले वीकेंड पे ना, इब्राहिम। तो वो हम्म। मैं सुबह सवेरे तो नहीं जागा, लेकिन जैसे इशराक की नमाज के बाद होती है ना नमाज, तो उसने फजर हम्म। पढ़ी तकरीबन 9 बजे हम्म। पे। तो और वो अच्छी ऊंची आवाज में तिलावत करता, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तिलावत करता है वो। तो वो हम्म। सूरत फातिहा पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी उसने फातिहा खत्म की। लेकिन उसके मैंने देखा, नोट किया, मैं सीढ़ियों पे खड़ी थी, वो नीचे था हॉल में। तो मैंने देखा कि वो उसका जो फेस है ना, वो ऊपर सामने दीवार पे है। हम्म। अब ये उसको किसी ने नहीं बताया, उसकी मॉम ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, बाप ने नहीं बताया। हम्म। नमाज वो बगैर कहे पढ़ रहा था। और बच्चे का सुबह हम्म। संडे वाले दिन 9 बजे जाग जाना, ये बहुत बड़ी हम्म। बात होती है। और उठ के नमाज भी पढ़ना, बगैर कहे हुए वुजू करना नमाज में। फिर हम्म। मैंने उससे बताया, जब नमाज से फारिग, मैंने उससे बताया कि आपने सामने देखना है, आपने सजदे वाली जगह पे देखना हम्म। है ना। तो जी। उसके बाद मैंने उसको कितनी बार नोट किया, उसने सजदे वाली जगह पे, जितनी बाकी नमाजें पढ़ी सजदे वाली जगह पे उसने। तो हम्म। बच्चों को गाइड करना पड़ता है ना। हम्म। आज कई दफा ये भी होता है ना, कुछ लोग आंखें बंद करके पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं ना आप नहीं करो, क्योंकि फिर उससे आपको ख्यालात ऐसे आने लगते हैं, आपका ध्यान नमाज भटक जाता आंखें बंद करके तो पढ़नी ही नहीं है। है। हम्म। आंखें बंद करके तो वो तो दूसरे लोग पढ़ते हैं, हम थोड़ी पढ़ते हैं। वो जी। उनकी इबादत का तरीका होता है आंखें बंद करके बैठ जाना। जी। जी। हमने हमने सजदे वाली जगह पे देखनी। हम्म। सही है। जी। मैंने कल एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें नमाज का सही तरीका बताया गया। अगर हो सका तो मैं वो बिल्कुल आपको शेयर करूंगी। और भी वुजू का तरीका भी बताया गया बाद में, दूसरी हम्म। वीडियो में और उसमें। बड़ा अच्छा वो उन्होंने पूरी, कैसे बैठना है, कैसे पढ़नी है, और मर्द और औरत की नमाज कैसे सजदा करना है, कितने हाथ अच्छा। फासला होना चाहिए, खड़े हम्म। होने का क्या तरीका है, फिर दोबारा जब बैठना है तो कैसे बैठना है। तो हम्म। वो सही जो प्रॉपर तरीका है ना वुजू करने का, किस तरीके से वुजू करना है। हम्म। तो ये चीजें भी हमें कौन बताएगा, बताएं। हमारा किसी मस्जिद से तो जैसा ताल्लुक नहीं है ना कि हम जाएं वहां पे, और हम तो जी। ऑनलाइन पढ़ने वाले लोग हैं। हम्म। So we are allowed to look up at the sky to reflect, make Make dua, dua, but we but we can't cannot look look up to up. the sky during the salat. जी। उस बच्चे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको एक बार बोलना पड़ता है, एक हम्म। बार। जब शुरू शुरू में ना ये बड़ी वो, बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। उस बच्चे पे भी ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, एक तो नाम ही और एक उसके बॉडी शेप वगैरह सब मुझे तो इब्राहिम ही नजर आते हैं। हम्म। आ, जब मैंने वो पैदा हुआ था तो हम कहते थे इसका नाम जो है ना, इब्राहिम बहुत बड़ा नाम है, बड़ा है, पैगंबर का है, हम इसका नाम, बच्चा छोटा सा होगा उसका नाम इब्राहिम रखें। जब वो पैदा हुआ तो हम्म। मैंने आपको बताया ना, 10.5 पाउंड का पैदा हुआ था। हम्म। और वो ऐसे मेरे बेटे ने मेरे हाथों में रखा तो मेरे हाथ बिल्कुल, मैं क्योंकि आदी थी छोटे छोटे बच्चों को उठाने की ना, न्यू हम्म। बॉर्न, उससे पहले भी कई हम्म। हो चुके थे। जब उसने मेरे हम्म। हाथ में रखा तो मैं उसी हिसाब से उठा रही थी, तो मेरे हाथ नीचे चले गया, मेरे बेटे ने संभाला फिर मेरे हाथों को। यानी हम्म। इतना उस बच्चे का वेट था। तो हमने फिर यही सोचा इसका माशाल्लाह। नाम रखते हैं ना इब्राहिम। अब ये है कि हम्म। उसको बड़ा कोई ब्लेसिंग है, मैं एक बार उसको जो काम बोलती हूँ उसको ऐसा ही याद रहता है, वो दोबारा नहीं करता। हम्म। एटलीस्ट हम्म। मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं करता, जो भी हम्म। काम बोल दो। खाना खाने का तरीका, प्लेट को खत्म करने का तरीका, सारी चीजें उसको मैंने सिखाई। खाना सेंटर में सिखाता था, पता नहीं माएं क्या करती रहती, क्यों नहीं देखती बच्चों को। हम्म। सेंटर से बच्चा खा रहा है, खाना जो बच जाता है वो जाया हो जाता है। तो सिखाया, एक साइड सिखाओ बेटा, सामने सिखाओ, खाना सामने सिखाया जाता है, फिर बच जाए तो उस साइड में। अब फिर मैंने से बताया कि अपनी प्लेट में जो खाना होता है उसको फिनिश भी करते हैं। तो उसने हम्म। उसने फिनिश करना भी सीखा। फिर अभी वो थोड़ा सा बच जाए ना तो वो कहता है मैं चम्मच से खा लूंगा, लेकिन प्लेट मुझे साफ करके ही रखनी है। हम्म। फिर अगर प्लेट धोएगा, फिर उसको अच्छी तरह, वो ये होता है ना बच्चे ऐसे, इधर से पानी उधर जा रहा है बर्तनों वाला, उसमें जैसे बर्तन रखते हैं है ना, आधा हम्म। पानी उधर जा रहा है, इधर से पूरा उसको करके हम्म। झाड़ के प्लेट को फिर उसमें रखेगा। एक बार मैंने बताया। अब बच्चों को थोड़ा थोड़ा हम्म। सिखाना चाहिए, कल इन्हें हस्बैंड बनना है। हम्म। तो माएं बच्चों को नहीं, लड़कों को ट्रेन नहीं करती, कोई बात नहीं जैसे भी है, और आगे बेचारी लड़कियों की मुसीबत आ जाती है फिर। माशाल्लाह, ये तो बड़ी बात है, मतलब बहुत इतना। बढ़िया। नहीं हाँ, हम्म। छोटा
हेल्प इतनी करेगा, किसी भी काम में भी देखेगा हेल्प की जरूरत है, फौरन आगे आएगा, करेगा ये। अभी छोटी एज है या मतलब थोड़ा बड़ा है? बड़ा 11वें साल का, मेरे को में 12वें में लगा हुआ है, क्योंकि 6 क्लास अच्छा, में है ना। फिर तो सिक्स। छोटे ही हैं, हाँ। हाँ छोटा ही है, इतना नहीं है, बहुत हम्म। मासूम सा बच्चा है। हाँ, वो मैं सोची थी शायद 14-15 साल में तो चलो फिर भी थोड़ी इतनी अकल आ जाती है कि आप मतलब एक दफा बता दिया तो फॉलो कर लो। ये लेकिन अभी तो एज छोटे एज हैं। कम है, लेकिन मैच्योर थोड़ा ज्यादा है। हाँ। इतने छोटे इस उम्र में बच्चे खेलने कूदने के अलावा कुछ नहीं करते। वो जी। भी करता है, सब कुछ करता है, गेम्स भी खेलता है, सारा ही कुछ करता है। आज भी उसकी क्लास थी तो वो किसी उसमें डाला हुआ ना, इस्लामिक में, संडे को। तो वहां पे हम्म। उसको ना, मेरा बेटा बता रहा था, उसको कलमे याद करवा रहे हैं। अच्छा। 5 कलमे। इस्लाम में इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने अपने बेटे को बताया हम्म। कि वो तीसरा कलमा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी का शब्द नहीं, नहीं, तीसरा कलमा जो होता है तमजीद, बस वो सुभान अल्लाह। वो ही एक है। पहला कलमा तैयब है, और बाकी कोई नहीं है, ये इतने सारे। और फिर मौलवी निकाह पे सुनने बैठ जाते हैं, ये क्या तरीका है हमारा? हमारे तो इतने हम्म। बच्चों के निकाह हुए हैं, किसी ने मौलवी ने कलमे नहीं सुने यहाँ पे। हम्म। तो इकरार करवाते हैं, बस अपना खुतबा देते हैं, और तो कुछ भी नहीं करते। बड़ी बड़ी हम्म। मस्जिदों में हमारे निकाह हुए हैं, इमाम बड़े हम्म। बड़े थे, लेकिन वही उस कल में, पाकिस्तान में पता नहीं कल में सुनाओ। मैं तो परसों सोच रही मैं हूँ कोई अगर किसी ड्रामा बेचारे को ड्रामा याद ना देख रही थी, होगी। उसमें भी लड़के से वो जो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मंटो वाला जी जी, वो ड्रामा। मैंने देखा है। उसमें वो जी। जो उसने कलमा पढ़ा, लड़की को तो पढ़ने ही नहीं आया, उसने गलत पढ़ा। जी। और लड़के ने जब पढ़ा तो उसको गोली मार दी। जी। जी, वो तो देखा कल था हमने। मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम कल में पढ़ो अभी। हम्म। तो पता नहीं वो ये क्या मुझे भी रहा लगा होगा। था क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना किसी को इस तरह मतलब मौलवी को पूछते हुए शादी के वक्त के कलमा सुनाओ। कलमा सुनाओ। तो ये चीजें, अच्छा ड्रामा था, खत्म हो गया। लेकिन ये हम्म। है कि बहुत सारा कोई एक हाथ रखना ही चाहिए जो अच्छा हो ना, तो बच्चों के लिए थोड़ा, जहाँ से हम्म। सीखने को भी कुछ मिल रहा हो। हम्म। तो बहरहाल जो भी है, चलिए फिनिश करें क्लास। जी। तो ये तकल्लुब क्या है, फिर इसको याद रखिएगा, ये बात तबस्सुम है। हम्म। ये मस्दर है, माजी नहीं है। माजी नहीं है, जी। माजी होता तो ये होता, ताल्ला माँ की तरह सब पे जबर आती। तकल्ला हम्म। बा होता, यहाँ भी जबर आती, यहाँ भी जबर आती, ये माजी बनता है। जब पेश आ हम्म। जाए तो ये मस्तर बन जाता है। हम्म। तक तबस्सुम, तबस्सुम, है ना। जी। तकल्लुफ, तो तकल्लुफ क्या है? तकल्लुफ मस्तर है ना, हम्म। इसम है ना तकल्लुफ। तो इसमें कोई काम कोशिश करके होता है, तकलीफ करके, अगेन एंड अगेन का मानी आता है। तकल्लुब वजही का, अगेन एंड अगेन कोई काम करना, तकल्लुफ होता है ना। कुछ मेहमान होते हैं ना कि वो कभी कभी आते हैं, तो फिर तकल्लुफ करना पड़ता है। जो रोज आते हैं उनके लिए तो नहीं करते ना, वो कहते हैं ठीक है, हम्म। ये तो रोज ही आ रहे हैं, है जी। ना। फिर आपको एक जी। हल्का सा बना के दे देते हैं, मैं ठीक है, क्योंकि उनको भी शर्म ना आए ना कि बार बार आती हैं तो ये। तो मेरे बच्चियां बार बार आती हैं ना, और उनकी गेम्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे हर हफ्ते आते हैं। तो वो उसको इतना हम्म। होता है कि मम्मा हमने तो रोज आना है, आप क्यों इतना। तो मैंने कहा क्या है, मैंने कहा फ्रूट चाट ही बनाई है बच्चों के लिए, इस तरह जंक वंक नहीं देती मैं बिल्कुल भी, अच्छे फ्रूट डाल के चाट बना दी, साथ कुछ हम्म। नमकीन बना लिया, तो दो चीजें हो गई। तो बस उन्होंने रोज आना है, खाना वाना वो नहीं खाते, टाइम नहीं होता बच्चों के पास, एक के बाद एक ही गेम होती है। साथ ही अच्छा। है वो जहाँ पे ये खेलते हैं ना, आइस हॉकी वगैरह होती है। अच्छा। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम्म। शुक्र है, वो बच्चे आते हैं। आज भी स्नो थी यहाँ पे, शुरू हो गई, लेकिन लेके आए हुए थे। हाँ, मैंने भी सुना था कि आज पहली स्नो हुई है। हाँ शुरू हो गई आज। पढ़ रही हम्म। हूँ, चले ठीक है, मुझे असर पढ़नी है, टाइम जा रहा है। जी जी। ठीक जी, है, ठीक है सुबहानक सर। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।